یہ عید قربانی کی عید ہے، اور اس روئے زمین پر ماں کی ہستی سے زیادہ قربانی بھلا کون دے سکتا ہے؟ ماں جو اپنے بچوں کے خوابوں کے لیے اپنے خواب درگور کر دیتی ہے، ماں جو اپنی اولاد کی خواہشوں کی خاطر اپنی خواہشیں بھلا دیتی ہے، ماں جو اپنے جگر کے ٹکڑوں کی ضروریات کے لیے اپنی ضرورتیں دفن کر دیتی ہے، ماں جو قربانی کی مجسم تصویر ہے، ماں جو خواب ابراہیم کی تعبیر ہے، ماں جو فلسفہ قربانی کی حقیقی تفسیر ہے۔ آج سریام کی ٹیم اپنا یہ خصوصی پروگرام ماں کے نام کرتی ہے۔ یوں تو ہر ماں اپنے بچوں کے لیے اپنی حیثیت اور اپنی بساط سے بڑھ کر قربانی دیتی ہے، لیکن آج ہم آپ کی ملاقات کچھ ایسی ماؤں سے کروا رہے ہیں کہ جن کی محنت اور جن کی قربانیوں کے صدقے پروردگار نے ان کے بچوں کو عزت، مرتبہ، شہرت اور دولت یعنی اپنی ہر نعمت سے نوازا ہے۔ فہد مصطفیٰ، فیصل قریشی، صنم بلوچ اور سرفراز احمد جیسے کامیاب لوگوں کی ماؤں نے ان کی تربیت کیسے کی، ان کی کامیابی کے لیے اپنے کس کس خواب کی قربانی دی، ان بچوں نے اپنی ماؤں کو کتنا تنگ کیا، اور کیا ان سب میں بچپن سے ہی سٹار بننے کے آثار تھے؟ یہ جاننے کے لیے عید کے اس خصوصی سریام میں ہم آپ کی ملاقات فہد مصطفیٰ، فیصل قریشی، صنم بلوچ اور سرفراز احمد کی عظیم ماؤں سے کروائیں گے۔ آج کے پروگرام میں سریام کی ٹیم کے اراکین نے میرے 6 سال کے بیٹے سے ساز باز کر کے میرے بچپن کے کچھ راز بھی میری والدہ سے جاننے کی کوشش کی ہے۔ مجھے اچھی طرح سے اندازہ ہے کہ میری ان سب شخصیات کے سامنے نہ کوئی بساط ہے اور نہ ہی کوئی اوقات، لیکن میری ماں نے ہماری پرورش میں زندگی کی جو صعوبتیں جھیلیں وہ دنیا کی ہر ماں کی طرح بے مثال ہیں۔ سو آئیے سب سے پہلے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں فیصل قریشی کی والدہ سے۔ وہ خود بھی پاکستان کی سینئر اور منجھی ہوئی فنکارہ ہیں۔ اپنے کام، اپنے کریئر اور اپنے خوابوں کے ساتھ انہوں نے فیصل قریشی جیسے سٹار کی تربیت کیسے کی، یہ ہم انہی کی زبانی آپ کو سنواتے ہیں۔ لیکن ان کی شفقت اور بڑے پن کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ ہم نے جو ان سے پہلا انٹرویو کیا وہ کسی تکنیکی خرابی کے باعث نشر نہیں کیا جا سکتا تھا۔ سو انہوں نے کمال محبت سے ہمیں اگلے روز دوبارہ وقت دیا اور اسی شگفتگی سے ہم سے اپنی یادیں پھر سے شیئر کی۔ بس تھینک یو اگین، آپ کا شکریہ ٹائم کے لیے۔ بس خیر ویسے تو بہت سارے سوالات پوچھ لیے تھے، لیکن اچھا یہ ہوا کہ اب اس سے مجھے اور سارے سوال بھی ذہن میں آ جائیں گے کہ میں اور کیا نئی چیزیں پوچھ سکتا ہوں آپ سے۔ تو سب سے پہلے تو مجھے بتائیں کہ فیصل قریشی ظاہر ہے دنیا ایک سٹار کے طور پر جانتی ہے، ایک جو کام انہوں نے کیا ایسا کیا کہ ماشاءاللہ اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، چاہے وہ اداکاری ہے، چاہے وہ کمپیئرنگ ہے، فلم ہے، ڈرامہ ہے، جہاں پہ بھی ماشاءاللہ نام کمایا، سکہ جمایا آپ کا۔ لیکن آپ نے ان کو کسی اور روپ میں دیکھا نا بچپن میں کہ نہیں میرا بچہ ڈاکٹر بنے، میرا بچہ انجینئر ہو، میرا بچہ پائلٹ ہو، کیونکہ مائیں سوچ لیتی ہیں نا کہ میں نے اپنے بیٹے کو یہ بنانا ہے، تو آپ نے کبھی کچھ سوچا تھا؟ بس وہ مجھے نا نیوی کا بڑا وہ تھا، اچھا، تو مجھے یہ تھا کہ یہ بھی آرمی میں جوائن کرے اور نیوی میں وہ سفید یونیفارم اچھا والا۔ لیکن میں نے دیکھا کہ یہ تو ناچنے کودنے میں لگا ہوا ہے اور جو بھی مطلب ایکٹر جو کرتا ہے اس کو ایسے جواب دے دیتا ہے۔ اچھا، آپ لاسٹ ٹائم مجھے ایک بات بتا رہی تھیں جو کہ یہ بالکل جب بہت چھوٹے تھے، کچھ مہینوں کے تھے شاید، جب والد بھی ان کے تھے تو جھولے ڈانس کرنا وہ یہ تھا۔ اس کے ابا کیا کرنا، شیو ویو بناتے تھے نا بیٹھ کے، تو ریڈیو پہلے تو یہی ہوتا تھا، ریڈیو لگا لیا، شیو بنے گانے چل رہے ہیں، وہ ریڈیو چل رہا ہے، گانے چل رہے ہیں، خود شیو بنا رہے ہیں، یوں کر کے دیکھا تو یہ ناچ رہا ہے۔ ارے مجھے کہتے افشاں جلدی آؤ، ادھر آؤ، ذرا اپنے بیٹے کو دیکھو۔ میں نے کہا تو یوں کرنا، میں نے کہا یا اللہ، میں نے کہا پتہ نہیں کیا ہے، آرٹ یعنی بچپن سے خون کے اندر تھا۔ ہاں بس یہ شروع۔ تو والد ظاہر 25 سال تقریباً ہو گئے ان کے انتقال کو، اس کے بعد تو آپ پہ ذمہ داری زیادہ، ایک تو ماشاءاللہ ظاہر آپ کا اپنا کریئر، آپ کے اپنے خواب اور ایک مین سٹریم میں ظاہر آپ کا کام تھا، پھر فیصل بھائی کی تربیت، ان کو بھی یہاں تک لے کے آنا۔ میرا خواب تو کچھ نہیں، میرا خواب میرا بیٹا ہی تھا۔ ماں کا خواب تو اولاد ہی ہوتی ہے نا، سب سے بڑی تو یہی میری کوشش اور کاوش کہتے ہیں جس کو، وہ یہی تھا کہ اللہ اس کو کچھ بنائے، اس کو کچھ سنوارے۔ اگر یہ سنور گیا تو سمجھیں گے ہماری محنت کام آ گئی۔ پہلی بار
इम्तिहान में कभी इनको कोई नहीं फर्स्ट आए हो या नाकामी हुई कोई एक्सट्रीम जिसमें आपको पढ़ने परेशानी? का असल में इसको ना एक तो नाचने का बहुत शौक था ना, अच्छा तो सामने सेंट जोसेफ स्कूल में टीचरें होती थी, वो क्या करती थी, इसको उठा के ले जाती थी अच्छा और टेबल पे खड़ा किया, बजाय पढ़ाने के खड़ा किया और म्यूजिक लगा दिया, चलो फैसल डांस करो, ओ फैसल डांस कर रहा होता उस था। वक्त से परफॉर्मर है ये पूरे? सबके अच्छा, सामने क्या वो डांस। बात। खैर वो सफर तो माशाल्लाह बड़ा लंबा है और साथ आपकी भी जद्दोजहद है, लेकिन एक ऐसा लम्हा कि जो आप पहला याद हो कि आपने आंखें बंद करके शुक्र किया हो या अल्लाह के तूने मुझे बच्चे की सूरत में भी एक कामयाबी दी है, वो मोमेंट? शुक्र तो अल्लाह का शुक्र है, मैं हर हाल में हमेशा करती हूँ। हाँ, वो ये था कि स्टेशन के ऊपर ना एक बड़े मियाँ, अच्छा बहुत बुजुर्ग थे, बैठे हुए थे प्लेटफॉर्म पे ना, तो एकदम मैंने देखा है वो बाबा उठा है फैसल को देख के और सीधा आया, आके तो फैसल को यूं करके जप्पी डाली, उसके हाथ चूमे, उसका मुंह चूमा और उसके पाँव ऐसे करने गया तो फैसल ने पकड़ लिया ना बाबे को कि बाबा क्या कर रहे हो? नहीं भाई तुम बहुत बड़े एक्टर हो, तुमने बहुत अच्छा काम किया और तू तो मेरा बूटा है, अल्लाह ने तेरू बूटा लाया है, अल्लाह ने बूटा लाया है। वाह वाह। वो बाबा बार बार ये कहे कि ये अल्लाह ने बूटा लाया है और अल्लाह ने वाकई फिर उसकी छांव और देखी, फिर अल्लाह ने कितनी बूटा फैलाई, लगाया। कितना घना शजर माशाल्लाह। ये मुझे बताइए कि एक माँ को तो अपने बेटे का काम अच्छा ही लगेगा, बेटा भी अच्छा लगेगा, लेकिन एक आर्टिस्ट के तौर पे मैं फैसल बहुत भाई का तनकीद काम करती करती हैं? हाँ, अच्छा तुमने ये रोल क्यों किया, ये मुझे अच्छा नहीं लगा, हेयर स्टाइल पसंद नहीं आया मुझे, या कुछ भी मैं बोल देती करती हूँ। रहती हैं, बिल्कुल ठीक हाँ। बात है। बस आखिर में, अच्छा वैसे तो बड़ा उनका माशाल्लाह सीरियस और संजीदा काम भी जब करते हैं, बट उनमें अचानक से जो है ना वो एक शरारत भी कूदती है कभी कभी, लगता है कि कोई एक जुमला ऐसा कर जाए। छिछोरा है मैं तो नहीं कहना चाह वो, रहा, मैं कह रही हूँ इसलिए कि उसको पंजाब की मिट्टी और पंजाब का दूध मिला हुआ है आपसे करते हैं शरारतें? बहुत, हर बात में मैं कहूँगी आ गए बेटा, नहीं जा रहा हूँ, अरे अच्छा खाना खा लिया और नहीं खाया तो बोलेगा डकारे ले रहा हूँ आपको नजर नहीं आ रहा। अल्लाह यानी हर चीज में कोई ना कोई ट्विस्ट उल्टा जरूर बोलेगा, करते हैं। कुछ भी मजाक, कोई भी मस्तियाँ। आयत अभी घूम भी रही है यहाँ पे माशाल्लाह। हाँ, एक तो बच्चे से प्यार अपना, और वो कहते हैं ना कि असल से सूद ज्यादा सूद प्यारा हो, ये ज्यादा वाकई सही प्यारा। वाली बात। आपको कैसा रिलेशन आपका है? अरे बहुत अच्छा है, वो इतना मुझसे प्यार करती है और मैं भी उससे बहुत प्यार करती हूँ। बल्कि अभी थोड़ी देर पहले की बात है कि मैं उससे कह रही थी कि आयत तो दुनिया में क्या लेने आई है, अच्छा तो मुझे कहती है आपको तंग करने आई हूँ बाबू। आपका शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने दोबारा से हमें टाइम दिया, नहीं, इतनी नहीं, ढेर कोई सारी बात बातें नहीं, आपसे हमने welcome। की, थैंक यू अगेन। अगर कुछ और पूछ रहे हैं तो मैं बता आप सकती दुआ हूँ, में आप जरा 2 मिनट बैठेंगे आप जरूर, ऐसे नहीं। जरूर। पाकिस्तान की टी20 टीम के कप्तान सरफराज अहमद की वालिदा बहुत सादा मिजाज हैं। चौका या छक्का क्या होता है, आउट होना किसे कहते हैं, ये सब उन्होंने सरफराज अहमद के क्रिकेटर बनने के बाद सीखा, और इस तरह सीखा कि अब वो सरफराज अहमद को भी क्रिकेट के हवाले से बाकायदा मशवरे देती हैं। कैसा लगता है वैसे जब आपको लगता है कि आपके बच्चे की वजह से पूरा पाकिस्तान वाकई सही मायने में खुश पाकिस्तान होता को है? खुशी होता है ना, हाँ और मुझे तो होती है खुशी, लेकिन उस वक्त जब मैच आता है तो दिल की धड़कन इतनी तेज होती है कि मुझे लगता है मेरी बीपी हाई हो गया, तबीयत खराब हो रही। सही है। बस मैं पढ़ती रहती हूँ, कभी देख, फिर बार बार देख टीवी के पास जाती, अब क्या कितने रन हो गए, अब क्या अच्छा, हो पूरा गया? मैच नहीं देख सकती बैठ के नहीं, एक साथ? बस सही नहीं देखती मैं, मुझे टेंशन होती है। सही है। वैसे माँ तो नाम ही कुर्बानी का है ना, छोटी छोटी चीजों पे बच्चों के लिए हर सारी जिंदगी वो यही करती रहती बिल्कुल, है। बिल्कुल। पहले दिन से जब बच्चा पैदा होता है वह बच्चा बच्चा ही रहता है हमेशा अच्छा उसके रहता है, लिए। बिल्कुल। तो आपने जिंदगी में क्या क्या एफर्ट किया, आपको क्या लगता है कि आपने ऐसा क्या किया अपने बच्चों के लिए कि जो अल्लाह ने इतनी इज्जत अलग से उन्हें दी है? एक स्टार है माशाल्लाह पाकिस्तान। एक तो ये कि अल्लाह का शुक्र, बचपन से इनके वालिद साहब इनको था कि हाफिज कुरान बनाएंगे। अच्छा माशाल्लाह। इनको हाफिज कुरान बनाया, तो ये छोटे से थे जब से इनको बड़ा शौक था। वहाँ बैग रखा और सीधे ग्राउंड में अच्छा, गए, बैग माओ रखा। को तो वैसे बात अच्छी नहीं लगती, आप इसकी बात है कि बच्चे पढ़ते क्यों नहीं है, तो ग्राउंड में क्या नहीं करते नहीं, हैं? अल्लाह का शुक्र है कभी शिकायत नहीं है, यही तो मुझे अच्छा। अल्लाह, और बच्चों ने पढ़ा, यानी पढ़ाई में भी पूरा, पढ़ाई में भी, कुरान और में भी, फिर स्कूल में भी, खेल में भी अपना खेल जो है में भी अल्लाह का माशाल्लाह। शुक्र है, शुरू से उसको बड़ा क्रेज था। तो हर माँ अपने बच्चे में कुछ ना कुछ देखती तो है जी, कि जी, ये बड़ा हो के बिल्कुल। ना ये बने, तो ये आपने बने। यही सोचा था या कुछ और सोचती थी आप? हाँ, मैं पहले तो मुझे क्रिकेट का शौक नहीं था, अच्छा नहीं देखती थी, बच्चे देखते थे,
پھر جب سے سرفراز آئے ٹیم میں اب مجھے اتنا شوق ہے کہ کوئی بھی میچ ہوتا ہے میں ضرور دیکھتی مجھے تو میری اماں نے تختی ہوتی تھی نا جس پہ لکھتے ہوتے تھے, اب تو پتہ نہیں خیر وہ بچے لکھتے ہی نہیں ہیں, پہلے ہم تو بچپن میں لکھا کرتے تھے. ہاں تو مجھے وہ مار مار کے کئی تختیاں مجھ پر ٹوٹی ہوئی ہیں. میں پڑھائی میں بہت عجیب و غریب بچہ تھا, ان کے والد لیکن کبھی آپ نے ان کے والد صاحب گراؤنڈ سے ان کو مارتے ہوئے لاتے تھے, کہتے ٹیسٹ پلیئر بنے گا, ٹیسٹ پلیئر, پڑھائی پڑھ نہیں رہے, ٹیسٹ پلیئر بنے گا. اب آج اللہ تعالیٰ ان کی زبان ایسی مبارک زبان تھی کہ لیکن وہ خود نہیں اللہ دیکھ خود سکے. نہیں دیکھ سکے. اچھا یعنی پہلا مومنٹ اگر میں آپ سے پوچھوں, پہلا لمحہ, پہلی بار آپ نے کہا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ یہ تو نے آج جو مجھے عزت دی ہے یا سرفراز کو جو عزت دی ہے, وہ کوئی ایسا لمحہ جو پہلا آپ کو یاد ہو؟ پہلا یہ کہ سرفراز جب انڈر-19 کیپٹن تھے نا, جو انڈیا سے میچ تھا ہو رہا تھا ان کا, ٹھیک ہے نا, انڈیا کو 109 پہ پاکستان کو آؤٹ کر دیا تھا نا. اچھا, انڈر-19 کے کیپٹن سرفراز بھی تھے, اور انڈیا سے میچ ہو تو انڈیا ویسے سے ہی میچ معاملہ اور تھا. ہوتا ہے. ہاں, تو میں نے کہا انشاءاللہ 100 سے پہلے آؤٹ ہو جائیں گے, اللہ اور نے یہی تو ہوا. وہ پہلا لمحہ تھا کہ جب جی آپ نے جی جی کہ فخر ہوا کہ اللہ نے آپ کے بیٹے کو اس کے لیے چوز کیا. تو ابھی کیا دعا کرتی ہیں آپ سرفراز کے لیے, ان کے کیریئر کے لیے, پاکستان ٹیم کے لیے؟ میں تو دعا کرتی ہوں کہ ہمیشہ ٹیم میں رہیں, اللہ تعالیٰ سب بچوں کو اچھا رکھے. میں نے یہی سمجھاتی ہوں سرفراز, دیکھو یہ لڑکوں سے یہ بولو کہ مطلب جیسے وہ بولنگ کرتے ہیں نا اسی طرح ہم بھی بولنگ کریں گے, بالکل ان کا اگر سیکھیں گے تو بالکل جیتیں گے. اور اللہ کا شکر ہے کہ میں اس طرح سرفراز کو ایسے سمجھایا تھا کہ اچھا امی میں کپتان تھوڑی ہوں, میں کپتان نہیں ہوں. ویسے ہارتے ہیں تو کیا فیلنگ ہوتی ہے؟ اور پوچھے, بہت طبیعت خراب ہوتی ہے, کوئی کھانا وانا نہیں کھاتا, اتنی طبیعت ہو رہی ہے, ہم لوگ بہت پریشان ہو رہے ہیں. آپ کا شکریہ, آپ کو ہم نے تنگ کیا اس کے لیے معذرت. تھینک یو ویری مچ. اللہ آپ کو سلامت رکھے, آپ ایسے دعا کرتی رہیں اور سرفراز ایسے اچھا کھیلتے رہیں اور پوری قوم ایسے خوش ہوتی رہے. ہر دن ہمارے لیے عید کا دن ہوتا ہے. بالکل بالکل انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. سریام کی ٹیم کے لیے سنم بلوچ کے توسط سے ان کی والدہ کی دعائیں تو ہم تک پہنچتی رہتی تھیں, لیکن سنم بلوچ کی والدہ سے ملنے کا موقع ہمیں آج کے سریام کی وجہ سے ہی ملا. سندھ میں گائیکی میں اپنا ایک مقام رکھنے والی اس ماں نے اپنے بچوں کے لیے, ان کی کامیابی کے لیے واقعی اپنے بہت سارے خواب قربان کیے. آپ کی زندگی میں کیا کوشش رہی اپنے بچوں کے لیے, خاص طور پر سنم کو اگر ہم ذہن میں رکھیں؟ جی جی, تو آپ نے کیا ایسا کچھ ایکسٹرا کیا جس کا آپ کو لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج سنم کی کامیابی کی صورت میں ریوارڈ دے رہا ہے؟ اقرار بات یہ ہے کہ جس فیملی سے میں تعلق رکھتی ہوں, جی ہاں, اسبانی بلوچ فیملی, اور وہاں سمجھو کہ میں پہلی لڑکی تھی جس نے کو ایجوکیشن میں میٹرک کیا تھا. اچھا, یعنی وہیں سے آغاز ہو گیا تھا اسٹرگل کا ایک طرح سے. تو وہ کہ میں نے اسٹرگل کی, میں نے ان کا مستقبل بچایا. کبھی مایوسی ہوئی بیچ میں, آپ کو لگا کہ تھک گئی ہوں, لوگ بھی سپورٹیو نہیں ہیں, ماحول بھی سپورٹیو نہیں ہے, پھر بچیاں ہیں, بہت تھک گئی, تھک جاتی ہوں, تھکتی رہتی ہوں, یہ بات بھی نہیں ہے کہ نہیں, لیکن وہی چیز ہے کبھی بھی ان کو میں نے زندگی میں اپنے بچوں کو میں کہتی کچھ بھی ہو جائے, میں نے ہمیشہ کہا کچھ آگے بڑھو, کچھ نہیں ہے. شرارتی تھی ویسے بچپن میں, سمجھدار تو تھیں لیکن شرارتی تو ابھی بھی ہیں, شرارتی تو ابھی بھی ہیں, بہت شرارتی. اتنا سنجیدہ کام کرتے ہوئے ایک دم سے کوئی ایسی ان کی آنکھوں میں شرارت چمکتی ہے اور پھر کوئی ایسا جملہ کہہ دیں گی یا کچھ ایسا کام کہ بندہ پریشان ہو جائے گا, یعنی سنم نے کیا کیا. اب میں اسے کہتی ہوں سنجیدگی تھوڑی بہت دیکھتے تو میں کہتی ہوں نہیں بنو سنجیدہ, مجھے اسی طرح, مجھے کیونکہ میں ماں ہوں نا, مجھے پتا چلتا ہے. سنم کو بطور ماڈل آپ زیادہ اچھا, بطور ڈرامہ ایکٹریس, بطور مارننگ شو ہوسٹ, آپ کے خیال میں آپ کی بیٹی کا سب سے آئیڈیل رول کیا ہونا چاہیے؟ مجھے سنم کی ہوسٹنگ بھی اچھی لگتی ہے. ہاں ہوسٹنگ, لیکن مجھے یہ, میں ایسے ہمیشہ کہتی ہوں کہ تم ڈرامہ مت چھوڑنا. کوئی واقعہ اگر میں کوئی ایک بات کہوں, جس طرح میری اماں, میں اپنی اماں سے کہتا ہوں تو اکثر ایک بتاتی ہیں کہ وہ مجھے کہتی تھی کہ ہر کسی کو جی کہا کرو. جی, تو ہر کسی کو بتاتی ہیں کہ مجھے ایک دن میں ہلا کے کہنے لگا باہر کتا تھا, میں ماں جی دیکھیں کتا جی. تو کوئی ایسا واقعہ ضرور یاد رہ جاتا ہے اپنے بچوں کا جو پہلا دوسرا نہیں ذہن میں فوراً کلک کرے کہ یہ چیز مجھے سنم کی بچپن کی یاد ہے. نہیں بس بچپن کی یہ ہے کہ ہمیشہ جب چھوٹی ہوتی تھی نا, تو جب بھی لائٹ چلی جاتی ہے یا کبھی گھر میں رات کا ٹائم ہوتا ہے تو وہاں اس کی ابھی تک میں سے یاد دلاتی ہوں, کہتی اماں گانا بتا. اچھا, ہاں, وہ کہتی اماں کے گانوں پر گانے گاتی جاتی اور یہ پھر سو جاتی تھی سنتے. پڑھائی میں کیسی تھی؟ پڑھائی میں یہ تھا اچھی بس تھی, ایسا مطلب اگر یہ پڑھنے پر فوکس کرتی تو
बहुत लेकिन अच्छा नहीं किया, किया। लेकिन नहीं। कभी मार पड़ी आपसे सनम को? कभी कभार में ना थप्पड़ लगाने का तरीका होता था, कोई बच्चे ने तो ऐसे ऐसे हाथ हिलता था मेरा, तो हिला हिला के कोई किसी को मतलब जोर से ना लगे, अच्छा, ताकि बहुत हल्का सा हल्का लगे। सनम में थोड़ा गुस्सा है वैसे आपस की बात? गुस्सा है थोड़ा नहीं काफी है, मैं तो नहीं, इसीलिए सनम के बाद में मैंने मिलना भी है ना मुझे। नहीं सनम में है, नहीं है सनम में। और सनम में ना अब गुस्सा ज्यादा होता जा रहा है, पता नहीं बड़े होने के बाद। कोई ख्वाब जो आपको लगता है कि अगर ये सिचुएशन ना होती या ये जिम्मेदारी ना होती तो मैं अपना ये ख्वाब पूरा करती, यहाँ तक पहुँचती, ये करती, मेरा ये ख्वाब था। एक जो मुझे पढ़ने का, आगे जाने का बहुत शौक था, क्योंकि जब मैंने बताया कि मैंने मास्टर्स किया, क्यों किया, बाकी ये था कि जिस तरह एज अ सिंगर मुझे कि ठीक है, शौक में जाकर मैं निसार बज़मी साहब के पास गई, उनसे क्लासेस, उनकी मेरे पास बहुत सारी, मैंने कहा कि मेरी तस्वीरें हैं। वो अलग बात है कि मैं बड़ी सिंगर नहीं बनी या मेरी आवाज़ का अंदाज़ा ना मुझे ना लोगों को, सही बात है, कुछ जिंदगी में बहुत कुछ चलो और चीज़ें मिल गई, कोई बात नहीं। चले, लेकिन अल्लाह ने फिर वही आपकी बात है, आपका जुमला कि अल्लाह ने उसके बदले में पता नहीं और कितना दिया, बच्चों की खुशी, बच्चों की कामयाबी, ये कि ये सब मैं वही कहती हूँ कि इनको मैंने इसी वजह से टाइम दिया, क्या पता मैं टाइम ना दे पाती। आपको सलाम है हमारी तरफ से, आप खुश रहें, हमारे लिए ऐसे ही दुआ करती रहें। बहुत शुक्रिया। और इतना अच्छा लगा आपसे मिलके, वैसे गायबाना तारुफ तो था, लेकिन वाकई ईद जो सही ईद कहते हैं ना, वो आपसे मिलके हमारी ईद हुई। बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको खुशियाँ दे, सलामत रखे, आप पूरी टीम को लिए हमारी दुआएं हैं, मेरी दुआएं हैं, और ये बड़ों की ये दुआ ही दे सकती है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू। रिकॉर्डिंग खत्म हो गई, लेकिन मैं अपनी भरपूर ख्वाहिश के बावजूद उनसे गाने की फरमाइश ना कर सका। सरेआम की टीम के एक रुकन ने हिम्मत करके उनसे कुछ सुनाने की दरखास्त की और इसे उन्होंने खुश दिली से कबूल कर लिया। बीते दिनों की यादों को कैसे मैं भुलाऊं, ए दिल कैसे मैं भुलाऊं, बीते दिनों की यादों को कैसे मैं भुलाऊं, ए दिल कैसे मैं भुलाऊं। इससे पहले कि आपकी मुलाकात फहद मुस्तफ़ा की वालिदा से करवाएं और फिर मेरा बेटा अपनी दादी से कुछ मज़े के सवाल करे, हम एक ऐसी माँ को खिराज तहसीन पेश करते हैं जिन्होंने न सिर्फ एक अच्छे फनकार बल्कि एक अजीम इंसान की परवरिश की, और उनकी कुर्बानी, जी हाँ, उन्होंने तो इस मुल्क, इस शहर पर अपना बेटा वाकई कुर्बान कर दिया। हम ईद कुर्बान पर शहीद अमजद साबरी की वालिदा की कुर्बानी को सलाम पेश करने उनके घर भी गए। अमजद भाई के बारे में ज़रा बताइएगा कि उनका बचपन कैसा था, आपने बतौर माँ अमजद साबरी बनाने के लिए क्या कुर्बानी दी, क्या एफर्ट्स थी, क्या कोशिशें थी? ये तो अल्लाह की मेहरबानी होती है, जाहिर है, लेकिन तरबियत दी है। वो भी छोटे से थे जब उनके वालिद साहब का इंतकाल हो गया था। सही, उसके बाद जिम्मेदारी ज़्यादा हो गई फिर आप पे, जाहिर है। तो मैंने कहा बेटा बस यही मेरी एक रिक्वेस्ट समझ लें या नसीहत समझ लें, तो किसी का एहसान नहीं लेना। अच्छा, कि भाई इनके अब्बा नहीं है तो इनके साथ ये कर दो, और हिम्मत नहीं हारनी। लेकिन मैंने कहा तुम माशाल्लाह 4 भाई हो, अच्छा, पानी में भी, जमीन में लात मारोगे पानी निकले, बिल्कुल सही बात है। 100 रुपए भी कमा के लाओगे तो बच्चा घर बेहतरीन चलता रहेगा। तो इससे आप लोग मत घबराना, और हिम्मत हौसला अपना बरकरार रखना। वाह, कभी मार पड़ी उनको आपसे? सही बताइएगा। बिल्कुल, बहुत छोटा था जब मेरा, होगा 10-12। अच्छा, और मचान वगैरह जो बनते हैं समझते हैं आप? जी हाँ, कि ये सामान फालतू यहाँ बिल्कुल ऊपर रख दें। तो वहाँ अपने शरारत में ऊपर चढ़ गए, और ऊपर चढ़कर वो कहीं तकिया फेंक, कहीं गद्दा फेंक, वो जो वहाँ का सामान। मैं क्या अमजद क्या कर रहे हो बेटा, अब उतरो नीचे चलो। अच्छा मैं उतरता हूँ। तो मैं ज़रा गुस्से होती हुई गई तो मैंने कमर में जड़ दिया। अच्छा, हम जब भी उन्हें याद करते हैं स्क्रीन पे, तो मैं अक्सर, मैं वसीम अनामी, हम यही बात करते हैं कि हमने अमजद भाई को कभी सीरियस नहीं देखा। अपने दोस्तों में या वहाँ पे मुस्कुराते रहते थे ना, चेहरे पे हंसी, एक छोटी सी शरारत। 100 फोटो देख लें आप सब पे, हाँ, यही मुस्कुराहट होगी चेहरे के ऊपर। तो ये घर में भी ऐसे ही थे, या घर में कभी हो जाता था नाराज हो गए, कभी गुस्सा कर लिया, कभी किसी बात पे, घर में भी ऐसे हंसमुख? कभी कोई गुस्से का सवाल ही नहीं है, और हम ही लोग हो जाते थे।
तो भाई इस तरह की शरारत भी थी, आज भी शरारत थी। खामखा बैठे बैठे मेरे ये अच्छा। मैंने कहा भाई खुदा रा माफ कर दे। अभी एक्टिंग कर देते थे। मेरी मदर डे का ये तारीख मालूम, अभी वो विश कर रहा हूँ आपको, मदर डे आ गया। मैंने कहा अच्छा। हमें तो पता नहीं भाई, मैंने लेकिन याद रखते थे। उसको याद। ईद आ गई है तो बकरा ईद, अब ये बकरा ईद हमारी रो रो के गुजर रही। 1000 हम बच्चों की खुशी के लिए ये जानवर लिया है, लेकिन वो रौनक नहीं। जाहिर है उनके होने से यहाँ से लेके यहाँ तक मंडी लगी हुई है और आप बैठे हुए तखत पे, और जनाब चाय चल रही है और लोग आ रहे हैं, अमजद भाई हो रही है, गाय को देखने आ रहे हैं, अमजद साबरी के फोटो खींच रहे हैं। चलें, बस हमने कहा हम हाजिर नहीं हुए थे आपके पास, आपसे मिलना भी था, आपसे प्यार भी ले लिया। चलें, कुछ यादें भी हमने ताज़ा की उनकी, और बस भाई अल्लाह करे बस सबसे कहती हूँ मैं, वो आया पूरी हुकूमत आ गई, जाहिर है पूरे लोग माशाअल्लाह अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी थी। और आज तक मैं कहती हूँ कभी कभी मेरे मुंह से बेशक अमजद को भी लाया कोई, तुम लोग तो आ गए सब, मेरे अमजद को लाया। उसकी जिंदगी भर याद भूलूंगी नहीं वैसे। फहद मुस्तफ़ा की वालिदा से मिलना भी एक यादगार तजर्बा था। मुल्क के एक सीनियर अदाकार की बीवी और एक सुपरस्टार की मां होने के बावजूद उनके मिजाज में सादगी और मासूमियत गालिब थी। कैसे बच्चे थे वैसे फहद भाई? आज जरा हमें मौका मिला है उनकी गिबत करने का। बहुत अच्छे, थोड़े से शरारती, थोड़े से बातूनी, जैसे ज्यादा बच्चे बातें करते हैं ऐसे। वैसे हर वक्त शरारती थे, शरारत अचानक से करते, जिस तरह अभी भी अचानक से शरारत बच्चे करते हैं अचानक। अच्छा। हाँ, ऐसे तो नहीं थे। तो पहली अपीयरेंस कब थी उनकी टीवी के ऊपर या किसी भी ऐसी स्टेज पे? या बाख ड्रामा नहीं, छोटे थे काफी? हाँ, तब बहुत से छोटे आना थे। शुरू हो हाँ, गया जब था? से अच्छा। हमारे बच्चे गए थे, सभी गए थे माशाल्लाह, लेकिन ये भी बहुत इसने काम किया, बहुत काम किया इनका इसने। काम माशाल्लाह ये गाने वाने गाता था बचपन से ही। अच्छा। जैसे हमारे घर में तकरीबें होती रहती थी, उसमें नाते गाने, जैसे मिलाद में करवाती हूँ हमेशा। यानी कि आर्टिस्ट इनके अंदर बचपन से ही था? बचपन से ही बहुत इंटेलिजेंट। मार पड़ी कभी आपसे इनको? सही से बताइएगा। वो तो है, आप समझते हैं, हर बच्चे को कभी ना कभी तो होती है। आपने लेकिन एक माँ जो है वो हमेशा अपने बच्चे में कुछ ना कुछ देखती जरूर है कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने, आर्मी का यूनिफॉर्म, पायलट, ये कुछ ना कुछ माँ के ज़हन में जरूर होता है अपने बच्चों को लेके, है ना, कि ये वाला बेटा मेरा ये बने, ये वाला बेटा मेरा ये। तो फहद भाई के बारे में कभी कुछ सोचा था कि ये बड़ा हो के ये करे तो ज़्यादा अच्छा है? ये कभी नहीं सोचा था। कभी नहीं आपने? क्योंकि मेरे जो वो बेटे हैं तो 2 और, एक है इंजीनियर, दूसरा भी बेटी हमारी डॉक्टर है। लेकिन जो मेरा था कि मेरे बच्चे पढ़ लिख के अफसर बने बड़े। अच्छा। इस तरह तो ये भी समझो कि इसको भी शौक तो था, लेकिन फिर वहाँ अचानक चला गया, चला गया। आपके ख्याल में फहद भाई की जो कामयाबी है, वैसे तो माशाल्लाह जिस तरह आपने बताया बचपन से ही काम शुरू कर दिया, लेकिन एक पॉइंट होता है जहाँ बंदा स्टार बनता है, या कोई एक ऐसी चीज़ होती है जिससे अल्लाह बहुत इज्जत देता है इंसान को, वो आपके ख्याल में क्या था? जी तो पाकिस्तान में गया वो उस वजह से। जी तो पाकिस्तान एक बिल्कुल फिर अलग होता है। आपको कितने लोग टाइम करते हैं पासेस के लिए? सही बहुत बताइए। बहुत भाई, बहुत। हर जगह जहाँ जाओ यही बात हो, चाहे अपने हो, चाहे दोस्ती वाले हो, चाहे पड़ोसी हो, कोई भी हो। खाने में आपके हाथ का क्या पसंद है फहद भाई? उसको बहुत सी चीज़ें पसंद थी, बिरयानी। लेकिन अब तो मेरे ख्याल वो डाइट शाइट के चक्करों में ज़्यादा हो गया ना, कि ये चीज़ खानी है, इसमें पहले सब कुछ खाता था, लेकिन चिकन ज़्यादा। अच्छा। लेकिन ऐसी चीज़ें हैं अभी तो अभी नमकीन चीज़ें। गाने का और वो नात वगैरह का तो शौक था उनको बचपन से, लेकिन ये उन्होंने ठक्की ठिक्की शुरू कर दिया इसके। उसी का असर है, समझे। उसी का ये भी असर करते थे बचपन से। आपने अपने बच्चों के लिए जिंदगी में क्या स्ट्रगल की, किस तरह से इनकी तरबियत की, क्या समझाया इन्हें कि ज़िंदगी में क्या बेटा करना है और क्या नहीं करना? हाँ, बहुत ख्याल किया अपने बच्चों का, पढ़ाई के मामले में, हर चीज़ में। आप ये समझें कि बहुत मैंने किया, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो मसरूफ रहते होंगे, मसरूफ, जॉब भी बहुत थी, जॉब भी ज़ाहिर है थी, काम भी था। हाँ, ड्रामा था, फिल्में थी उसकी। तो मैंने अपने बच्चों को ज़्यादातर पढ़ाई में, हर चीज़ में। किस बच्चे ने सबसे ज़्यादा तंग किया आपको? फहद ने तो नहीं किया। नहीं किया? उसकी तो बात मैंने कभी नहीं करूँगी। क्या बात? नहीं, बहुत वो अच्छे थे कमाल हो गया बचपन तो। से ही। बाकी और जो थे बड़े वाले या दूसरा जो, लेकिन फहद भाई अच्छे बच्चे थे इसका मतलब। बहुत बहुत अच्छे। कमाल है। बट बता रहे मुझे वो संजीदा आदमी है,
फहद भाई, या कभी संजीदा? इतने नहीं हुए, दोनों। बहुत कम। अब फहद भाई, हमें भी अंदाज़ा है कि वो इतने मसरूफ़ रहते हैं ना कि हमें कभी रब्ता करना पड़ जाए तो मुश्किल हो जाती है कि पता नहीं कौन से मुल्क में है, कौन सी रिकॉर्डिंग में है, माशाल्लाह क्या काम कर रहे हैं। तो वो इतना सारा कुछ हो रहा होता है उनकी ज़िंदगी में। तो आपके लिए कितना वक्त मैनेज कर पाते हैं फ़ोन पे या वैसे, या किस तरह से? फ़ोन करते रहते हैं। अच्छा। जी हाँ, जब टाइम मिलता है तो आते रहते हैं। अच्छा। जब भी टाइम मिलता है अपने बच्चों के साथ आ जाते हैं। जी हाँ, तो आप प्यार करते हैं बहुत हम लोगों से, दोनों से, हम दोनों से, भाइयों बहनों से बहुत प्यार। एक ही बहन है उनकी। अच्छा, बहुत प्यार करते हैं। माशाल्लाह। तो माशाल्लाह। इस ईद पे होंगे या अभी मेरे ख्याल रिकॉर्डिंग में? अभी तो गए हैं नहीं, यूरोप में आ रहे किस चीज़ के हैं, लिए? आ रहे हैं। ईद पे वापसी नहीं होगी? नहीं, ईद पे आ आ जाएंगे, जाएंगे अल्लाह। साथ ईद करते हैं। अच्छा, ईद सब, साथ होगी जी हाँ, इंशाल्लाह। सब साथ करते चलें, हैं। हमें दुआ में याद रखिएगा। आपका शुक्रिया, आपका हमने टाइम लिया, लेकिन वो मैंने बताया ना कि ज़रूरी था ईद पे हमने कहा आपसे ख़ास तौर पे पूछें कि फहद भाई कैसे थे, आपने उनके लिए क्या किया। तो हमें बड़ी अच्छी अच्छी नई नई चीज़ें पता लगी हैं बात करने। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू बेटा, मेहरबानी। और आखिर में मेरे खिलाफ होने वाली एक मासूम सी साजिश जिसे सरेआम की टीम के अराकीन ने मेरे 6 साल के बेटे पहलाज के साथ मिलकर प्लान किया। पहलाज ने मेरी वालिदा यानी अपनी दादी से कुछ सवाल किए और फिर सरेआम की टीम के अराकीन भी इसमें शरीक हो गए। मैं फिर ये कहूँगा कि आज जिन शख्सियात की माओं से आपकी मुलाकात हुई वो सब स्टार्स हैं, मुल्क के बड़े नाम हैं। मैं चाहकर भी खुद को उन लोगों में शुमार नहीं कर सकता। प्रोग्राम का ये हिस्सा मेरा नहीं, सरेआम की बाकी टीम का फैसला था। मैं इस पर अज़राहे मजाक बस इतना ही कहूँगा कि इदारे का इससे मुत्तफिक होना ज़रूरी नहीं। दादू, एक बात सच सच बताना, जब बाबा छोटे थे तो वो अच्छा पढ़ते थे या नहीं? बाबा पढ़ने में इतने अच्छे थे कि दादो को यही पता होता था कि बाबा ने फर्स्ट ही आना। दादो तैयार होके बैठती होती थी, मिठाई लेके बैठती होती थी, और दादो को पता होता था कि बाबा ने वो ट्रॉफी लेके आनी। और जब बाबा सरेआम में जाते हैं इतने खतरनाक चोरों को पकड़ने के लिए, तो आपको डर लगता है? दादो कितना डरती थी, पहले पहले दुआएं मांगती थी सारा दिन। दुआएं तो खैर अब भी मांगती है दादो, लेकिन ये कि अब थोड़ा सा दादो को काम लगता है। और जब बाबा छोटे थे तो वो शरारत करते थे या नहीं? बाबा शरारत नहीं करते थे, लेकिन जिद बहुत करते थे, तांग बड़ा करते थे। तो उनको आपसे मार पड़ती थी? हाँ, उस वक्त मार ज्यादा बाबा को ही पड़ी। जितने भी आपकी बेटी और बेटी हैं उनमें से सबसे ज्यादा आपको अच्छा कौन सा? आपके बाबा। अच्छा, बाबा में और मुझ में क्या चीज थी? गुस्सा। बाबा को गुस्सा बहुत आता है, पहलाज को उससे ज्यादा गुस्सा आता है। बाबा को बचपन में क्या बनने का शौक था और आप क्या चाहती थी कि वो क्या बने? मैं बस ये चाहती थी कि बाबा ज्यादा पढ़ के कोई भी अच्छा, जब कोई भी दादो देखती थी ना कोई पुलिस वाला अच्छे वाला या कोई डॉक्टर अच्छे वाला, तो दादो यही चाहती थी कि बस अच्छा इंसान बने, ज्यादा सारा पढ़े, अच्छा बच्चा बने। तो बाबा क्या चाहते थे कि बाबा जो थे ना वो डिबेटर थे। दादो मना करती थी, लेकिन भी ज्यादा डिबेट करने ना जाया करो, ज्यादा क्रिकेट खेलने ना जाया करो, पढ़ा करो ज्यादा। तो फिर ये है कि थोड़ा सा मतलब क्रिकेटर बनना चाहते थे। बाबा सरेआम कैसे बन गए? बाबा सरेआम ऐसे बन गए कि बाबा पहले एंकर थे टीवी में, तो फिर बाबा ने एंकर होते हुए तो बाबा ने फिर प्रोग्राम करना शुरू कर दिया। और बाबा को ये था कि मैं अच्छा इंसान बनाऊं, सारे लोगों को, पाकिस्तान के लोगों को, सारों को मैं बताऊं कि ये जो गलत काम कर रहे हैं ये आप ना करें। तो फिर इसलिए फिर बाबा सरेआम बन गए। आप बाबा को इतनी मुश्किलात का सामना करके यहाँ तक कैसे लेके आए? हाँ, ये है कि जो दादो है ना, उस वक़्त आपको तो देखो स्कूल जाते हो ना आप, तो आपको ड्राइवर छोड़ के आता है, ड्राइवर लेके आता है। वहाँ जब बाबा पढ़ते थे ना जब, तो बाबा एक गांव में जाते थे, दूर गांव में स्कूल था बाबा का। तो फिर दादो को ये होता था कि 5 मिनट भी लेट हो गया, फिर दादो को परेशानी होती थी कि इतनी देर हो गई है, बाबा स्कूल से नहीं आए। फिर ये होता था कि दादो बाबा के लिए खाना तैयार रेडी करके रखती होती थी कि जल्दी से आके खाना खा लेगा। फिर दादो ने बाबा की मालिश करनी, फिर दादो ने मतलब बाबा को बादाम वाला दूध पिलाना। तो जब वो वापस आते थे तो फौरन ही खेलने चले जाते थे या फिर कुछ करते भी हाँ, थे? ये बड़ी मुश्किल होती थी, फौरन ही खेलने चले जाते थे। दादू,
आपने बाबा को कितनी मुश्किल से पढ़ाया? आपके बाबा को दादू ने ज़्यादा मुश्किल से पढ़ाया, क्योंकि आपके बाबा जो थे ना वो बहुत ज़िद्दी थे। वो जो बात अपने दिल में सोच लेते थे वो कहते थे मैंने यही करनी है। फिर दादू ने ना बाबा पे सारा दिन सारी तवज्जो बाबा पे रखती थी दादू। आंटी, हमने हमेशा ये सुना है इकरार भाई से कि ख्वाब बड़े देखने चाहिए, तो आप हमें बताएं कि इकरार भाई के वो कौन से बड़े ख्वाब थे जो वो पूरा करना चाहते थे और पूरा कर चुके हैं अब तक? उसका बस यही था कि मैं, उसको ये पता था कि मैं बड़ा हूँ घर में, बचपन से इसको ये था कि मैंने ही बहन की शादी करनी है, मैंने भाई को पढ़ाना है, मैंने घर देखना है, मैंने मतलब हर चीज़ करनी है। इसको ये होता था कि मैंने सारा करना, मैंने घर का सारा मतलब उठाना था। आप एक जिम्मेदार शख्स था। हर माँ चाहती है कि अब जो है अपना बेटे को जो है इकरार बनाए। आप क्या मैसेज देंगे दूसरी माँ के? बस यही है कि मेरा तो ख्याल है कि कुर्बानी एक को देनी पड़ती है, या माँ देती है या बच्चे देते हैं। अगर माँ कुर्बानी देते तो बच्चे लायक हो जाते हैं, बच्चे पढ़ जाते हैं, बच्चे कुछ बन जाते हैं, अगर माँ कुर्बानी देती है। और अगर माँ कुर्बानी नहीं देती, वो अपनी ज़िंदगी को देखे, अपना ही ख्वाब उसका हो, अपने कपड़े पहनने का उसको पता हो, अपने खाने का पता हो, अपने सिलसिला हो, तो फिर बच्चे कुर्बानी देते हैं, स्ट्रगल फिर बच्चे ज़िंदगी में करते हैं। एक ऐसा वाकया, कोई एक ऐसा एक्सपीरियंस आप हमसे शेयर करें जिसने आपको प्राउड फील कराया हो इकरार भाई की तरफ से? हाँ, एक वाकया ऐसा है कि जब इसकी बीए की डिग्री लेने के लिए मतलब पेरेंट्स सारे माँ बाप इकट्ठे गए थे, मैं अकेली थी। जब इन्होंने ले लिया ना प्राइज़ वगैरह, रोल ऑफ ऑनर ले लिया, जब मैं घर के लिए निकलने लगी तो उन्होंने कहा कि जी गवर्नर साहब पीछे से आ रहे हैं, आप साइड पे हो जाए, पीछे से गवर्नर साहब आ रहे हैं। हम लोग साइड पे हो गए तो वो एकदम से रुके काफ़ी दूर जाके, और एकदम से वो पलट के सारे उनके साथ टीचर्स प्रिंसिपल सारे उनके साथ पलट के वापस आए। तो मुझे उन्होंने आके कहा कि ये आप इकरार की वालिदा हैं। हालांकि इकरार मेरे साथ नहीं खड़ा था, तो उन्होंने कहा कि जी आप इकरार की वालिदा। मैंने कहा जी इकरार, हाँ जी मैं इकरार की वालिदा। तो मुझे कहने लगे कि जी आपको फ़ख्र होना चाहिए इसकी माँ होने पे। तो फिर वो डिग्री लेके मैं सारे रास्ते उसको डिग्री को देखती है, तो मतलब एक मेरे लिए वाकई वो लम्हा था कि मैं मेरा वो सारा सिला मेरा पूरा हो गया था, सारी ज़िंदगी की मेहनत मेरी पूरी हो गई थी। आंटी, जिस तरीके से इकरार भाई पाकिस्तान की खिदमत करते हैं, क्या आपकी खिदमत भी वैसे ही करते हैं? मेरी यही खिदमत है कि माशाल्लाह से मैं दुनिया ही इसकी आंखों से देख रही हूँ। आपने किन किन चीज़ों की कुर्बानी दी इकरार भाई के लिए? तो बहुत सारी ख्वाहिशात होती हैं इंसान को, नमाओं को। मेरा ख्याल है कि हर चीज़ की समझ लें कुर्बानी दी मैंने। मुझे नहीं पता कि मुझे कौन सा रंग ज़िंदगी में अच्छा लगता था, या मुझे नहीं पता कि मुझे कौन सा खाना अच्छा लगता था, या मुझे नहीं पता कि मैं कब सोई या कब उठी। मतलब मैं इन्हीं को देखा है। और ये मुझे नहीं पता था कि मेरे बहन भाइयों में से किसी का कोई फंक्शन है या किसी का कोई जाना है। मैंने अगर मेरे बच्चों को कोई टेस्ट है या मेरे बच्चों को कोई पढ़ाई है तो फिर मैं नहीं गई किसी के घर। अगर मुझे टाइम इनसे मिला है तो मैं कहीं गई हूँ, वरना मैंने कभी सारा कुछ ही छोड़ा है मैंने इनके पीछे। दादू, वैसे तो मुझे पता है आपको खाने में क्या अच्छा लगता है। एक दिन बाबा को पता चल गया था कि आपको गर्दन की बोटी क्यों अच्छी लगती है। वो ये था कि जब अब तो चिकन ज़्यादा सारा होता है ना, तब इतना चिकन नहीं होता था। तो बाबा को क्योंकि सालन में बोटी अच्छी लगती थी, तो बाबा को ये था कि सालन में बोटियाँ हों। तो फिर दादो जो थी ना वो अपनी बोटी भी निकाल के ना उसमें से सालन में से तो वो बाबा के सालन में रख देती थी। तो बाबा कहते थे आप क्यों नहीं खा रही? मैं कह रही थी मुझे बोटी अच्छी नहीं लगती बाबा। तो फिर मैं गर्दन की बोटी बाद में खा लेती थी। तो मैं कहती थी बाबा मुझे बेटा मुझे अच्छी नहीं लगती बोटी, मैंने नहीं खानी। इसलिए फिर दादू ना बाबा को दे देती थी। अच्छा, इकरार भाई ने शादी अपनी पसंद की है आपको? शादी इकरार की अपनी पसंद से की, लेकिन मर्जी मेरी उसमें शामिल थी। मतलब पसंद करके इकरार ने फिर मुझे बताया कि ये मैंने इसको पसंद किया है। फिर मैं दुबई गई, फिर मैं जाके देखा एनी को, तो माशाल्लाह से एक अच्छी बहू मुझे साबित हुई। तो मैंने कहा बिस्मिल्लाह करके बस अल्लाह का नाम लो, और इसमें से मुझे अल्लाह ताला ने इतना प्यारा माशाल्लाह से पोता दिया। ईद कुर्बान पर सरेआम के स्पेशल प्रोग्राम के आखिर में अपनी जात की कुर्बानी देकर अपने बच्चों को अमर कर देने वाली माओं के लिए बस इतना ही। ये कामयाबियां, इज्जत, ये नाम तुमसे है। खुदा ने जो भी दिया है मकाम तुमसे है। तुम्हारे दम से है मेरे लहू में खिलते गुलाब, मेरे वजूद का सारा निजाम तुमसे है।
जहाँ जहाँ है मेरी दुश्मनी सबब मैं हूँ, जहाँ जहाँ है मेरा एहतराम तुमसे है।